پھر میں نے سوچا کہ کچھ کیا جائے، میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا، شاید اسی لیے رب نے تمہیں وسیلہ بنا دیا۔ زارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ اس وقت وہ اسے سب بتانا چاہتا تھا، آخر تھک گیا تھا سب خود میں رکھ کر۔ تم نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر سفر طے کر گیا، فرشتے اذلان سے زہرا اکبر تک کا سفر طے کر لیا۔ تم مجھے پسند نہیں تھی، شاید یہ ہر ٹپیکل مرد کو پسند نہیں ہوتا کہ ایک عورت سامنے سے خود اسے اپروچ کرے اور اس کے سامنے بچھی چلی جائے۔ وہ بولا تو زہرا کو دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا شاید۔ اس کے بعد فرشتے کون تھی مجھے یاد نہیں، پھر مجھے یاد تھی تو زارا نامی لڑکی جو روز سم خرید رہی تھی میری وجہ سے، جو اپنی محبت کا کھلے عام اعلان کرتی تھی۔ پھر میں نے ہار تسلیم کی اور تمہاری محبت کو آزمانے کا سوچا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہے بھی یا نہیں، تمہیں مجھ سے محبت ہے یا تمہاری آنکھوں میں میرا عکس بنتا ہے، لیکن تم محبت کی آزمائشوں کو سمجھ نہیں پائے، اسی لیے آج دوسرے ہی دن تم نے ہار مان لی۔ وہ مسکرا دیا۔ میں نے ہار؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی ساری حقیقتوں کے بعد وہ قابل نہیں تھی کچھ بولنے کے۔ اعظم نے اسے دیکھا، اس کے نقش کو، اسے یہ نقش حفظ کرنے تھے تعمر کے لیے۔ محبت کا کیا تھا، وہ بھی ہو ہی جاتی، لیکن وہ لڑکی اس مقام پر فائز تھی جہاں قیامت تک کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا جھکا لیکن وہ پیچھے ہوئی۔ سوری۔ اعظم کی سنجیدگی سے دیکھتی نگاہوں پر وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ مجھے اب بھی لگتا ہے کہ ہمیں پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت۔ تمہیں لگتا ہے زارا اعظم اظہر کہ تم پر حق رکھتے ہوئے میں کسی ڈرامہ یا فلم کی طرح تمہیں وقت دوں گا؟ میں بہت پریکٹیکل سا، عام سا لیکن الجھا ہوا انسان ہوں، لیکن اس کے لیے بہت عام جو میرے قریب ہے، اور تم سے زیادہ قریب کون ہے میرا؟ اس کمرے میں میرا ماضی آخری بار ڈسکس ہوا ہے، اس کے بعد کوئی بات، کوئی وضاحت میری طرف سے نہیں ہوگی۔ فرشتے میری بھابھی، میری دوست ہے، اس بارے میں ہم کبھی بات نہیں کریں گے اب دوبارہ، ٹھیک ہے؟ زارا کے اعصاب چٹکے تو وہ گہری سانس بھر گئی، جیسے بھاری وجود سارا وزن اتارتا پرسکون ہوا۔ ان کا ٹی وی لاؤنج کا دروازہ نوک ہوا تو زارا باہر نکلنے لگی۔ یہاں آؤ، میں دروازے پر دیکھ لوں، وہ بولی تو اعظم نے اسے گھورا۔ تو کیا اب آپ مجھے ان آنکھوں سے ڈرائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے اعظم، میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ وہ بھی جیسے ہلکی پھلکی ہوئی تھی۔ بے شک مت ڈرو، لیکن جب میں یہ 2 لفظ بولوں تو تمہیں سب کام چھوڑ کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں عادت ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ وہ کہتی باہر دیکھنے چلی گئی تو اعظم نے ادھ کھلے دروازے کو گھورا۔ یہ لڑکی اسے ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ وہ باہر دیکھ کر واپس آئی اور چیزیں دیکھنے لگی کیونکہ اسے پارلر جانا تھا۔ جب زور سے چکراتے سر کو تھامتے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، اعظم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ بس چکر آ گئے، زارا نے کہا اور نگاہیں اٹھاتے اس کا فکریہ انداز دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ شخص اس سے محبت کر ہی لیتا۔ مجھے پارلر چھوڑ کر آئیں، میرے سر میں درد ہے۔ تو پھر میں نہیں جاتی، کیونکہ میں کسی ڈرائیور کی ذمہ داری نہیں ہوں، اور آج تو کیا میں مستقبل میں کبھی ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں۔ تم زیادہ نہیں پھیل رہی؟ نہیں، ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں آپ نے، زارا کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن منہ دھو کر آؤ پہلے، اعظم نے اس کی برسی ہوئی آنکھیں دیکھتے کہا تو وہ فریش ہونے چلی گئی۔ نیچے جاتے وہ سب سے خوش اسلوبی سے ملی تھی۔ پلیز ایک گلاس جوس، اس نے ملازمہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ فرشتے بھی وہاں موجود تھی، اسے بھی اذلان نے چھوڑنے جانا تھا، لیکن وہ ابھی لان میں انتظامات دیکھ رہا تھا۔ یہ لو پیو، اعظم نے اس کے آگے گلاس کیا تو وہ چونکی، پھر سب کو دیکھا جو اسے ہی مسکراتے دیکھ رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ گلاس تھاما اور فرشتے کو دیکھا جو آنکھ دباتی اسے دیکھتے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ دونوں بھائی تو بیویوں کے غلام بننے کو تیار ہیں، کسی کزن نے شرارت سے کہا۔ غلام نہیں، محبت کہو لڑکیاں میری بیٹیوں جیسی نازک ہوں تو اتنی کیئر تو بنتا ہی ہے نا۔ جواب ان کی ماں کی طرف سے آیا تو فرشتے اور زارا جھینپ گئی، جبکہ سب مسکرا دیے۔ زارا نے گلاس میں ایک گھونٹ چھوڑ دیا، یہ اس کی عادت تھی کہ وہ پانی پیتی بھی آخری گھونٹ چھوڑ دیتی تھی، جس کی وجہ سے اسے کافی ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی۔ اعظم نے اس سے گلاس تھامتے وہ باقی کا جوس لاشعوری طور پر پیا اور باہر نکل گیا، جبکہ اس کی باقی کی کزنز یہ حیرت سے منظر دیکھ کر رہ گئیں۔ زارا کا دل یکدم نئے خواب بننا شروع ہوا۔ جاؤ زارا، وہ بولی تو وہ خدا حافظ کرتی باہر نکل گئی۔ جانے جانا خوش آمدید اس گھر میں، اس کمرے میں، کیونکہ دل میں تو آپ سالوں سے براجمان ہیں، وہ کہتا اس کی طرف جھکا تو فرشتے دور ہوئی تھی جھجک کر۔ فرشتے اذلان اظہر، اب آپ کو دور نہیں بلکہ پاس آنا ہے جتنا ممکن ہو سکے۔
फरिश्ते ने उसको देखा और फिर कमरे को। ये बेहद खूबसूरत है। नहीं, तुमसे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ क्या झूला लगा है? फरिश्ते ने उसके हाथ पकड़ते पुरनम हथेलियों को नज़रअंदाज करते पूछा। नहीं, तुम भूल गए हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अगले और मुस्तकिल ठिकाने पर लगा दिया है, बड़े वाला, वो भी। मतलब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मेरा सारा बिजनेस कनाडा है, हम वहीं रहेंगे। वो बोला तो फरिश्ते ने सर हिलाया। मैं चेंज कर लूँ? वो झिझकते बोली। न जाने क्यों उसके गालों से धुआं उठ रहा था। क्यों? मेरे लिए तैयार हुई हो तो मुझे देखने तो दो। अजलान ने कहते झटके से उसे खुद के पास खींचा तो वो उससे आ लगी। थक गई हो? फरिश्ते ने सर हिलाया। क्या मुझे माफ़ी मिल गई है? नहीं, फरिश्ते ने कहा तो अजलान ने उसे घूरा। मेरे भी काफ़ी हिसाब थे तुम्हारी तरफ, लेकिन इस रूप के बाद किसी और दिन पर डाल दिए। तुम भी किसी और दिन पर डाल दो। वो उसके बाल खोलता बोला। नहीं, अच्छा तो सज़ा दे लो। किस किस चीज़ की सज़ा दोगी? वो ध्यान से उसके बालों से एक एक करके पिन निकाल रहा था। बहुत सी बातें हैं, मुझे सख्त हाथों से ट्रीट करने। वो वाजे नहीं बोली, लेकिन अजलान जानता था कि वो उस मंजर का हवाला दे रही है जब वो गुस्से में उसे हर्ट कर गया था। अच्छा, और मुझे अनजान शख्स बनकर तंग करने की। उसका बदला तुम मेरी बात ना मानकर अपने दोस्त बनाकर वो ड्रग्स हाथ में पकड़कर ले चुकी हो। आगे बोलो। और वो सामने आ खड़ा हुआ। बाल सारे खुलकर उसके कंधों पर पड़े थे। अजलान ने झुकते अपने मजबूत हाथ उसकी कमर पर बांधे, जिससे जैसे यकीन दहानी की हो कि अगले लम्हे वो नीचे गिर जाएगी। आई हेट यू। नफरत और मोहब्बत तुमने दोनों मुझसे ही करनी है। क्या तुम मुझे रेड लिपस्टिक लगाकर दिखाओगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका हाल भी तुमने यही। वो कहती जुबान दांतों तले दबा गई। अच्छा पहचानती हो मुझे। वो सोफे पर बैठ गई तो अजलान ने उसकी गोद में सर रखा। अब बताओ क्या सज़ा है मेरी? आपने बहुत बुरा किया अजलान, आपने मुझे बहुत हर्ट किया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। मैं तुमसे दूर इसलिए रहा हूँ फरिश्ते अजलान कि वहाँ दूर बैठे मैं ना चाहते हुए भी गुस्से पर काबू पाने के लिए कितने सेशंस ले चुका हूँ। मैं नहीं चाहता था कि कभी दोबारा तुम्हें हर्ट करूँ। खुद को तुमसे दूर रखकर खुद को सज़ा दी है। तुमने भाई को क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बीवी हो? अजलान अज़हर की बीवी। आई एम सॉरी, फरिश्ते ने उसके बालों में हाथ रखते कहा। मैं बहुत डर गई थी। मामा बाबा के बाद वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती अजलान। मेरे इतने इलाज के बाद भी अक्सर वो दिन मेरे सामने आ ठहरता है जब मैं बेबस थी और वो शख्स मेरे बेहद करीब। वो रुक गई, जैसे हलक में अटके आंसुओं को बाहर ना आने दिया। उसके वालिदैन के बाद उसे उसकी नानी ने संभाला था। वो उसका बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन फरिश्ते की तालीम भी ज़रूरी थी और वो उसे बाहर किसी ट्यूशन नहीं डाल सकते थे, इसलिए घर पर ही ट्यूटर लगा दिया। सिर्फ गलती ये हुई कि वो मर्द ज़ात था। कहने को वो देखा भाला लड़का था जो खुद भी अभी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से खुद ही पैसे जमा करके अपनी फ़ीस अदा करता। यही वजह थी कि उन्होंने उसे रख लिया था, लेकिन उसने अपनी गिरी हुई ज़हनियत का सबूत देते फरिश्ते को इस्तेमाल करना चाहा। उस बच्ची को जो नवीं जमात में थी, उसे याद था जैसे उस शख्स ने नफ्स की बातों में आते हाथ लगाया था कि वो उन हाथों के लम्स से सालों बाहर ना आ पाई थी। उसकी दादी ड्राइवर के साथ अपनी दवा लेने गई थी और उस दिन बारिश की वजह से अजलान और आज़म दोनों ही नहीं आए थे खेलने, नहीं तो वो रोज़ आया करते थे। उसकी दादी ने फरिश्ते को काम वाली के साथ छोड़ा और उस लड़के को फ़ोन पर इत्तला दी कि आज बारिश है तो वो ना आए। काम वाली को घर से फ़ोन आया, उसका बच्चा शायद छत से गिर पड़ा था कि वो फरिश्ते को बताती निकल गई। फरिश्ते अपने लिए फ्राइज़ बना रही थी जब दरवाज़ा बजा। वो खोलने गई तो उसका वही टीचर था। सर आज तो छुट्टी है, क्या दादी जान ने आपको नहीं बताया? नहीं, वो गहरी निगाह उस पर डालता बोला। ओह, तो अब आप छुट्टी कर लें, कोई भी घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गए सब? वो खुद ही अंदर आता पूछने लगा तो फरिश्ते ने उसे सब बता दिया। आज रहने दें प्लीज़ सर, छुट्टी दे दें, फरिश्ते ने उसे देखते कहा। अच्छा नहीं पढ़ाता, चलो मुझे अपना कमरा तो दिखाओ, वो हल्की फुल्की बातों के बाद बोला। तो फरिश्ते उसे अपना कमरा दिखाने ले गई, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करता उसकी तरफ मुड़ा। फरिश्ते, जी सर, करीब आकर बात सुनो, वो आंखों में चमक लिए बोला तो फरिश्ते उसके पास गई। आई लव यू, वो लड़का उसका हाथ थामता बोला। फरिश्ते ने तेज़ी से उससे अपने हाथ छुड़वाए और वहाँ से निकलना चाहा। वो घबरा गई थी। इतनी तो बच्ची नहीं थी कि उस शख्स की पल में बदलती निगाहें न समझ पाती, लेकिन वो उसे पकड़ता अपनी तरफ खींचता उस पर झुका कि फरिश्ते ने उस पर थप्पड़ों की बारिश करते उससे दूर होना चाहा। कुछ नहीं करूँगा,
प्यार करूँगा सिर्फ। वो उसे काबू करना चाहता था। हटो, वो आज़म और अज़लान को बता दूंगी मैं, छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें, हटो। वो मुसलसल अपना आप उससे छुड़वा रही थी। इससे पहले कि वो मर्द मजीद गिरता, उसकी दादी ने दरवाज़ा खोलते हाथ में पकड़े डंडे से उस पर हमला कर दिया। ड्राइवर ने भी फौरी काबू किया उसे। उसे मारते वो भागकर फरिश्ते के पास गई, जो बिखरे बालों और हुलिये के साथ धाड़े मार मार कर रो रही थी। उन्होंने आंखें मीचते वो कयामत खेज मंजर देखा। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि किसी लड़के पर भरोसा करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मर्द ज़ात पर शायद भरोसा ही नहीं करना चाहिए था उन्हें। उनका दिल चाहा वो दुनिया को चीख कर बताएं कि उनकी जान से प्यारी औलाद की हालत, लेकिन नहीं, फरिश्ते को वो किसी सूरत दुख नहीं दे सकती थी। खावर उस्मानी नाश्ता कर रहे थे जब दरवाज़ा बजा। कौनैन यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। आज वो लेट उठे थे कि तबीयत कुछ बोझल सी थी। दरवाज़ा खोलते ही सामने जो चेहरा नज़र आया वो उन्हें हैरत में मुब्तला कर गया था। खावर उस्मानी ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद नहीं कर पाए, इसलिए दरवाज़ा खोलते खुद अंदर चले गए। तो वो भी अंदर दाखिल हुआ और गेट बंद करता अंदर चला गया उनके पीछे। क्यों आए हो? नाश्ते का नहीं पूछेंगे, बैठो। शायान उस्मानी शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूब गया। उसकी इतनी बदतमीजी और अखलाक से गिरने के बाद भी वो उससे कैसे पेश आ रहे थे। उसे धुतकारा नहीं था। कौनैन कहाँ है? मैं तुम्हें कल समझा चुका हूँ बरखुरदार, अगर मेरी बेटी के मुतालिक बात करनी है तो जा सकते हो। नहीं, आज मैं अपने चचा के घर आया हूँ। वो बोला तो खावर उस्मानी चौंके, लेकिन फिर से सर झुकाते प्लेट पर झुक गए और उसकी प्लेट में नाश्ता निकालते उसके आगे रखा, जो वो खामोशी से खाने लगा। क्या चाहते हो? नाश्ते के बाद वो सोफे पर जा बैठे तो वो भी वहीं आ गया। अपने चचा जान के पास नहीं आ सकता क्या? आज कैसे याद आ गई मेरी? वो हैरत से बोले। बस मैं जान गया हूँ उस औरत की असलियत जिसने सालों आपको अजियत पहुंचाई और मेरा बचपना और मेरी जवानी मस्क कर दी। वो उनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन वो खामोश रहे। मैं हमेशा उन्हें कहता रहा कि आप मेरे फेवरेट हैं, और वो हमेशा मुझे कहती कि आप धोखेबाज हैं। बचपन में मैं समझ नहीं सका, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मुझे आपके खिलाफ करती गई। मुझे बताती रही कि आपने उन्हें धोखा दिया है, उनसे शादी के वादे करके, उनसे मरासिम बढ़ाकर किसी और से शादी कर ली। उन्होंने बताया कि आप कैसे किरदार के मालिक हैं, आप कैसे उनसे मिलते रहे हैं। और खावर उस्मानी मुतमईन से बोले तो वो सर उठाता उन्हें देखने लगा। आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, पहले आया करता था, अब तो सालों बीत गए। जो लोग दिमागी तौर पर पागल हो चुके हों, क्या उनका इलाज महज बातों से किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। इसलिए कभी मैंने उस औरत को जवाब नहीं दिया। आपने उनको गलत साबित क्यों ना किया? क्योंकि इन सब में तुम्हारी माँ भी थी। अगर ये सब खोल देता तो मेरी वजह से एक रिश्ता टूट जाता, और मेरे अपनों ने ही मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं सब छोड़ आया। कम अज़ कम जिसके साथ आया था उसने मुझे खाली हाथ तो कबूल किया। मेरे दुख सुख की साथी तो रही, मुझे एक खूबसूरत तोहफा तो दिया, कौनैन की सूरत। शाहजेब भाई मुझसे राब्ते में रहे थे। आपका और कौनैन का निकाह भी उन्होंने करवाया था। वो हमेशा कहते थे कि कौनैन उनकी बेटी है, लेकिन उस औरत को ये भी हजम नहीं हुआ। तहजीब उस्मानी को एक रोज़ शाहजेब ने बता दिया था शायद कि वो मुझसे मिलता है, और उस निकाह का भी। और उसके बाद जो हुआ सब जानते हो तुम। शाहजेब उस्मानी कभी मुझसे नहीं मिले। उनकी आंखें भीग गईं, जैसे आज भी वो उन दिनों को जी रहे हो। शायान ने उनके घुटने पर हाथ रखा। मुझे नहीं अंदाज़ा मैं कब इस खुद साख्ता नफरत में बहता चला गया। और बचपन की हर गलती आप पर माफ़ है मेरे बच्चे, लेकिन क्या होश संभालने के बाद भी आपको खबर नहीं हुई? आपने कभी नहीं जानना चाहा कि आपकी मनकूहा कौन है और कहाँ है? नहीं, ये सच नहीं है। मैं जान गया था, लेकिन बहुत सालों बाद जब मैंने अपना नया बिजनेस शुरू किया था, बाबा की अलमारी से कागजात मिले थे, तो उसमें अपना निकाहनामा देखता मैं कई लम्हे सुन रह गया। बेहिसो हरकत था। मैं किसी सिनफे नाजुक से मंसूब हूँ, मैं नहीं जानता था, और ना ही किसी ने मुझे बताया था। और फिर मैंने खाला से बात की। उन्होंने मज़ीद आपके ख़िलाफ़ मेरे दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया। शायद वो जानती थी कि मैं खामोश नहीं बैठूंगा और कौनैन खावर उस्मानी को ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैंने ढूंढा उसे, लेकिन दिल से नहीं। शायद उस नफ़रत के बाद मैं उसे भी नहीं मिलना चाहता था, लेकिन कुछ महीनों बाद वो मेरे सामने थी, कौनैन खावर उस्मानी। उसने पहली ही मुलाकात में मुझ पर वाज़ेह कर दिया कि वो मेरे निकाह में है। मेरी मालूमात जो मैंने करवाई थी उसमें मैं उसके बारे में और आपके मर्ज़ के बारे में जान गया था। बस मैंने आगे जो किया वो साइमा नकवी ने जो कहा वो किया। कौनैन को नौकरी पर रखा अपने लिए। वो चाहती थी कि उसे घर में किसी मुलाजिम की तरह मुतारिफ़ करवाया जाए, लेकिन मेरे दिल को ये गवारा न था। मैंने ऐसा नहीं होने दिया।
मैंने नफरत होने के बावजूद आपका इलाज करवाया क्योंकि मेरे दिमाग पर उस शख्स की तस्वीर और वो लम्हे हल्के हल्के छपे थे जिसमें आप सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत किया करते थे। मैं तो आप सबसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी गुनाहगार रहा हूँ आपका। वो उनका हाथ थामता भारी होती आवाज़ के साथ बोलता चला गया तो खावर उस्मानी उसे देखते रहे। फिर उसके सर पर हाथ रखा तो वो झटके से सर उठाता उन्हें देखने लगा। नहीं, आप मुझे इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकते। आप भी मुझसे नफ़रत करें सालों तक। नहीं बेटा, मेरी इतनी उम्र नहीं बची। वो मुस्कुरा दिए तो वो तड़प गया। उस शख्स का हौसला और दिल कितना बड़ा था। मैंने माफ़ किया आपको मेरी जान, बस शिकवा ये रहा कि आपने मेरी बेटी का दिल दुखाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उससे मोहब्बत की है, यकीन करें उसके साथ कुछ भी झूठ नहीं था, कोई फरेब नहीं था। उसे दिल से अपनाया था मैंने। कौनैन के लिए मेरा दिल धोखा कर गया और मैंने अपनी खाला की भी एक नहीं सुनी। मैं इस सब के बावजूद उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो उनके हाथ थामे उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था उनकी बेटी से। वो मुस्कुरा दिए। सालों पहले उन्होंने भी तो मोहब्बत की थी, फिर कैसे न देख पाते वो सच्चे जज्बात। हमने आपको माफ़ किया, खुश रहे। और आपकी बेटी, वो सीधा हुआ, कान के साथ जिस्म का हर उज़्व उन्हें सुनने का मुंतज़िर था। वो आपका और आपकी बीवी का मामला है। वो हंसकर बोले तो वो गहरी सांस भर गया। उसकी बीवी, हाँ वो उसकी बीवी थी। उन्होंने अपनी बेटी उसे दे दी थी। आप मेरे साथ वापस चलें। नहीं, यह मुमकिन नहीं। वो मेरा घर नहीं है। दादा जान ने कहा है कि आपको लेकर आना है। आप जानते हैं आपसे कभी भी नफ़रत नहीं की उन्होंने। क्या कोई वालिदैन अपनी औलाद से नफ़रत कर सकते हैं? मैंने उन्हें रातों को आपके कमरे में जाते देखा है, आपकी याद में उनकी आंखों को नम देखा है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। वो मुस्कुरा दिए। मेरी पहली नौकरी भी उन्होंने लगवाई थी, ये भी मैं जानता हूँ। वो बोले तो शायान ने हैरत से उन्हें देखा, फिर मुस्कुरा दिया। चलें फिर? मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर अब? हमारी बेटी से पूछ लो, वो जाएगी तो। वो पहले संजीदगी और फिर शरारत से बोले। उसे मैं मना लूँगा। आप अपना सामान बांधें। आपके भाई और वालिद साहब आपका कमरा रोज़ साफ़ करवाते हैं और अब भी वो आपके मुंतज़िर हैं। खावर साहब मुस्कुरा दिए। हाँ, उन्हें लौट जाना चाहिए था। सालों तरसते रहे थे वो उन रिश्तों को। क्या पता कब ज़िंदगी दगा दे जाए। वो सर हिला गए तो शायान उनके ज़रूरी सामान के साथ उन्हें हवेली छोड़ आया। अब मुश्किल हदफ उसकी बीवी थी। कौनैन शायान उस्मानी। आपको कैसे मनाया जाए? वो उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था जब उसे सामने से कौनैन आती दिखाई दी। वो बाहर निकलकर खड़ा हुआ, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती आगे बढ़ने लगी। कौनैन, कौनैन वापस आओ प्लीज़, बात करनी है मुझे। क्या मसला है? कब से लड़की को परेशान कर रहा है तू? दो लड़कों ने शायान को देखते कहा तो कौनैन ने मुड़ते उसे देखा, जो शिकवा भरी नज़रों से उसी को देख रहा था। मेरे हस्बैंड हैं। वो वापस आई और उनसे बोली। कौनैन ने कहा तो वो दोनों लड़के उन्हें अजीब नज़रों से देखते चले गए। चलो, बिल्कुल नहीं, अपने रास्ते पर जाएं और दोबारा मत आइएगा। कौनैन शायान उस्मानी, आप बैठ रही हैं या मैं अपने तरीके से बिठाऊं? वो बोला तो कौनैन ने उसे एक नज़र देखा और फिर कदम गेट की तरफ बढ़ाए। शायान ने आगे बढ़ते उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और गाड़ी में बिठाते अपनी जगह पर बैठा और स्पीड से चलाते अपने फ्लैट पर लाया। क्या चाहते हैं आप शायान उस्मानी? क्या बचा है अब? मेरी बात सुनो कौनैन, शायान ने उसका हाथ थामते हुए कहा। हाथ नहीं लगाएं। वो पीछे हुई। फिर से थप्पड़ मारोगी? शायान बोला तो कौनैन ने निगाहें चुराई। क्या चाहते हैं आप? आपको, शायान ने उसे पानी पकड़ाते कहा जो हाँफ रही थी अब।